YCB is Yoga Certification Board, which comes under Ministry of Ayush. Okay, so till now, this is the only certification board which comes under Government of India. I'll just take you to the website first to just give an introduction. Okay, so this website is from Ministry of Ayush, Government of India, and they have created this board, Yoga Certification Board, like CBSE board we have. Similarly for yoga, this is the single board which will conduct all the examination in future, or at least it will give a common standard for all the institutions who want to conduct yoga examinations. Their exam process is very simple. You can directly, if you have the skill, suppose you have the skill, the syllabus is given for different levels. There are different levels, like for beginners also, for advanced also. So today I'm considering most of you already know, because we are going to discuss about the exam, not the YCB. You can see the exam calendar here, and they are conducting exam almost on every weekend. Even more than that, you can see this blue strip, dark blue strips are showing you the exam date given. They can also take support from some institution for the learning purpose and then select the exam date. For example, if I select this 12th of June, I will see different examination agencies which are conducting exam. You can also select the online one. If you select online, you can appear in the exam from home, both theory and practical. Okay. And if you pass, you will get certificate from Government of India. You will be officially allowed to teach yoga. So today we have some of our students who have already qualified this examination at different level, like level 2 and level 3. And who we are, I will just show you in a brief. So we have created a team of certified yoga teacher from Ministry of Ayush, and we are trying to train other people who are in different kind of business. Suppose they are working or maybe housemaker, but initially they had some passion of yoga or doing yoga, even teaching yoga. So if they want to start career in yoga, it's better to start it like part-time, or suppose whenever they are having their free time, especially in COVID, most of you are free, so they can pursue this career. So for that, we are trying to help, and we are providing the training for this part. The syllabus that you have seen here, we are providing the same curriculum, theory and practical, to the students so that they can get the training and then they can appear in exam. So some of the students who have already gone through this process and qualified, they will share their experience today. This is the process. Okay, once I have given this website, you can go there as well, or you can come to this Mahabodhi Yogbit. You can search on Google, you will find us. Syllabus is also given here. So there is 3 simple steps to get this certificate. One is go through the syllabus, check your capacity, check the syllabus, then find out which syllabus is good for you. If you are a beginner, start with level 1. If you are intermediate, you can start with level 2. If you are advanced, you can go for level 3. After you select your level, you can either do your self-study, self-practice, or you can come to us. We give complete training of all the 3 levels. We also provide the study material. We conduct our classes like this on Zoom, and we record it as it is being recorded right now, so that you can revise it, or you can, even if you miss the class, you can watch it later. We conduct unit tests and exams, like this is practice exam, practice test, so that you are ready for the exam. And then you appear in exam. Okay. Appearing in exam, it is of 2 parts, theory and practical. Theory is MCQ type, and practical is like at this time online, and you can appear it through Zoom or whatever the platform they are using, the online platforms that they are using. And you have to score 70% to get this certificate. So this is the brief process. If you want more detail, you can come to this website. All the information about especially YCB exam is given here. Okay, Neeraj Verma, yes, please. What is the gap between level 1 and level 2? If I qualify for level 1, after how much days I can apply for level 2? Okay, so first of all, there is no limitation. Okay. And
that also means that you can choose even level 2 before going to level 1. Okay. So if I choose level 2, Yeah. is it mandatory to go through level 1? No, that's what I Again? said. No, not Oh, needed. that is included in level But 2. If yeah, so you can say the purpose is little bit different, but Right, whatever right. level 1 can do, level 2 can still do. Okay, that's fine. that's my point. So आप बिल्कुल बिगनिंग से स्टार्ट कीजिए कि पहले आप मतलब क्या कर रही थी, रेगुलरली योगा कर रही थी या फिर कुछ और भी प्रोफेशन था, एंड देन यू केम टू योगा. हाँ, गुड इवनिंग एवरीबॉडी. वैसे तो मैं पहले हाउसवाइफ थी, बट मुझे थोड़ा हेल्थ इशू था, तो मैंने योगा ज्वाइन किया. हेल्थ इशू में मुझे बैक पेन था और सर्वाइकल का प्रॉब्लम था. तो मैंने जब योगा ज्वाइन किया तो मुझे काफी अच्छा रिलीफ मिला उससे. तो मुझे योगा अच्छा लगने लगा, एंड ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स भी इतने थे, थोड़ा मतलब अस्थमा का जस्ट स्टार्ट हुआ था मुझे. तो मैंने ज्वाइन किया योगा. योगा करने के बाद मेरे टोटली सब प्रॉब्लम्स सॉल्व हो गए. तो मैंने सोचा कि मैं भी ये ज्वाइन करूंगी, और अगर मुझे इतना फायदा मिल रहा है तो सबको भी मिलना चाहिए. इसके लिए फिर मैंने योगा ज्वाइन करके अच्छे से कोर्स कंप्लीट किया. प्राइवेट में किया था. हमारे एक सर थे, उन्होंने हमें सिखाया, और उन्होंने इतना मतलब अच्छा सिखाया कि सबने इतना अच्छा किया. तो उन्होंने कहा कि आप अच्छा सीख रहे हो, कर रहे हो, तो आप खुद एक सिखाने लायक टीचर के जैसे आप तैयार हो चुके हो, तो आप दूसरों को भी ये सेवा दे सकते हैं. तो मैंने स्टार्ट तो कर दिया. 2-3 साल मैंने सबको सिखाया भी, क्लासेस भी ज्वाइन किए, और अच्छा रिस्पांस मिला मुझे. बट बाद में मुझे ऐसा लगा कि ये रिस्पांस मिला है, बट ये लीगली है या नहीं ये पता नहीं. तो फिर मैंने कांटेक्ट किया बहुत से लोगों से, तो उन्होंने कहा कि आपको सिखाना तो अच्छे से आता है, बट आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, और सर्टिफिकेट ना होने के कारण आप प्रूफ नहीं कर पा रहे हो कि आप इतना अच्छा टीचर हो. तो फिर मैंने भीम जी सर से कांटेक्ट किया. उन्होंने बताया कि आप ज्वाइन कर सकते हो उनका क्लास, सर्टिफिकेट मिल सकता है इससे. तो मैंने उनका क्लास ज्वाइन किया नवंबर में आई थिंक ज्वाइन किया मैंने. फिर अच्छा क्लास था उनका, बहुत अच्छा नॉलेज मिला मुझे. काफी सारी चीजें मुझे नहीं मालूम थी, जस्ट मैं सिखा रही थी वो बात अलग है, बट थेरोटिकली जो मालूम होना चाहिए वो मुझे मालूम नहीं था. तो ये क्लास ज्वाइन करने के बाद मुझे मालूम हुआ, और काफी सारी ब्रीदिंग टेक्निक्स जो नई नई थी वो भी पता चली. तो ये क्लास ज्वाइन करने के बाद एग्जाम के लिए प्रिपरेशन का था. तो एग्जाम वाकई में टफ तो नहीं था, बट एग्जाम का सोच के ही सबको डर इतना लगता है. थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस आई उसमें, ऐसे कुछ इश्यूज थे, बट बहुत अच्छे से एग्जाम भी मेरा हुआ. प्रिपरेशन बहुत अच्छे से किया मैंने. लगा नहीं था इतनी जल्दी कि अच्छे से अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे इसमें. प्रैक्टिकल भी मेरा अच्छा हुआ. प्रैक्टिकल में उन्होंने ज्यादा कुछ पूछा नहीं, और बहुत कोऑपरेटिव थे. 3 जजेस थे उसमें. तो वो लोग अगर मैं बीच में थोड़ा अटकती गई तो उन्होंने मुझे एनकरेज किया. उन्होंने खुद ही आंसर्स दिए, बताए कि लतिका जी आप डरिए मत, आप अच्छा कर रहे हो करके. और बहुत अच्छे से मेरा एग्जाम भी हुआ, और फिर कुछ दिन में रिजल्ट भी आ गया कि मैं अच्छे से सेकंड लेवल पास हो गई. मैंने सेकंड लेवल के लिए अप्लाई किया था. तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छे से हो जाता है. और मैं थर्ड लेवल के लिए भी अभी अप्लाई करने वाली हूँ. तो मुझे तो थोड़ा बहुत नॉलेज था, बट इसके क्लास अटेंड करने से, महाबोधि का जो क्लास मैंने अटेंड किया, बहुत नॉलेज मिला मुझे इससे. काफी सारी नई चीजें मुझे पता चली जो कि मुझे नहीं मालूम था. तो मुझे योगा सिखाने में और ज्यादा मजा आने लगा कि मैं और भी कुछ इसमें डिटेल में जान गई. बहुत सारे आसनास जो मेरे परफेक्ट नहीं थे वो भी मैंने किए. थैंक यू भीम जी, थैंक यू महाबोधि योगपीठ, थैंक यू. जो मुझे एक इतना मिनट. अच्छा रिस्पॉन्स मिला इससे. एक बार हम लोग थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं, स्पेशली यहाँ पे कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं ना जो अभी कर रहे हैं कोर्स. ठीक है, तो उनको थोड़ा डिटेल में जानना जरूरी है कि कैसा एग्जाम होता है. और तो लेवल 2 का मैं थोड़ा सा मार्किंग स्कीम शेयर कर रहा हूँ, और उसमें से थोड़ा बहुत आप बता सकते हैं तो ठीक है. लाइक डेमोन्स्ट्रेशन में हम लोग जनरली ऐसा मान के चलते हैं कि 80 मार्क्स है. 80 मार्क्स में से वो कैसे कैसे पूछते हैं, लाइक आसनास पूछते हैं या फिर किस तरीके से, क्या क्या पूछा उन्होंने प्रैक्टिकल में? प्रैक्टिकल में उन्होंने सबसे पहले तो, आप जैसे स्टार्ट करते हो क्लास, राइट. आपने किससे शुरू किया, प्रार्थना से या फिर और किससे आप डायरेक्ट आसन स्टार्ट कर रहे हो या कुछ और कर रहे हो. तो पहले तो उन्होंने मुझे बोला आप जस्ट स्टार्ट करिए, और सबसे पहले तो उन्होंने ये बताया कि आप डरिए मत,
कॉन्फिडेंस आपका पहले वही डाउन हो जाता है कि आप थोड़ा सा स्टेज जो आप फियर होता है आपका, तो वही थोड़ा कैमरे के सामने अगर आते हो तो थोड़ा कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। बट उन्होंने इतना अच्छे से बताया कि आपको जैसे शुरू आता है करने, आप वैसे स्टार्ट कीजिए। तो एज यूजुअल हम जैसे प्रार्थना से स्टार्ट करते हैं, तो प्रार्थना से ही हमें स्टार्ट करना अच्छा रहता है। प्रार्थना स्टार्ट करने के बाद आप एज अ टीचर स्टूडेंट्स को कैसे पढ़ाते हो, तो वो एक टॉपिक भी उन आपको देते हैं कि जैसे अगर मुझे कोई प्रॉब्लम है, फिजिकली कुछ हेल्थ इशू है, एग्जाम्पल सर्वाइकल का हो गया, तो आप स्टूडेंट्स को क्या बताओगे, कैसे स्टार्ट करना है, किसे करना चाहिए, किसे नहीं करना चाहिए। कोई आसन का काउंटर पोज होता है, वो आपको बताना है। तो ये सब उन्होंने बताया। फिर वो एक दो आसन जो बताते हैं कि वो खुद अपने मन से आप उनको उनके हिसाब से करना होता है। और एक आसन जो होता है एडवांस लेवल वाला, वो आप खुद अपने मन से कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड है आप कौन सा आसन परफेक्ट कर रहे हो, वो आपको उन्हें करके दिखाना है। ओके, उस तो ये आसन का एडवांस, पूरा आपको प्रिस्क्रिप्शन देना है। ओके, एडवांस का जो आसन है वो आपने कहाँ से किया? सिलेबस के अंदर से ही कोई चूज कर लिया? मैंने एडवांस लेवल में मैंने हलासन किया था, तो ओके, उन्होंने बताया कि हलासन का मीनिंग क्या होता है, ओके, हलासन इस आसन को कैसे नाम पड़ा है, तो वो आपको बताना है उसका मीनिंग, उसका बैकग्राउंड कहाँ से है, कहाँ से नहीं है, और उसके फायदे क्या है, बेनिफिट्स क्या है, और किसे करना चाहिए, किसे नहीं करना चाहिए, कॉन्ट्राइंडिकेशंस, यस, वो आपको बताना है। या ओके, ऑलराइट। और प्राणायाम वगैरह में? हाँ, प्राणायाम में उन्होंने बताया ब्रीदिंग टेक्निक्स जो होती है, हाँ, जैसे कि आप लोगों, मुझे तो पहले तो एक दो ही ब्रीदिंग टेक्निक्स पता थी, बट आपका जब क्लास मैंने ज्वाइन किया तो मुझे काफी सारा डिटेल में पता चला कि थोरैसिक ब्रीदिंग होती है, क्लैविकल रीजन की ब्रीदिंग होती है, यस, एब्डोमिनल ब्रीदिंग होती है, ऐसे काफी सारे ब्रीदिंग के टेक्निक्स पता चले। तो उन्होंने वैसे मुझे बताया, नॉर्मली कुछ ज्यादा है हेडेक देने वाले ऐसे कुछ पूछा नहीं उन्होंने, नॉर्मल जो ब्रीदिंग टेक्निक्स है उन्होंने वही पूछे, अनुलोम विलोम के बारे में पूछा उन्होंने, कैसे करना है और इसके फायदे क्या क्या है, कपालभाति के बारे में पूछा उन्होंने, नहीं पूछा ओके, उन्होंने। ओके। और बंद और मुद्रा से भी पूछते हैं क्या? बंद और मुद्रा? हाँ, बंद और मुद्रा उन्होंने मतलब ओके, एक बंद और आपको एक मुद्रा पूछा, जो आपको पता है ज्यादा अच्छे से आप जिसका डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं उसी के बारे में उन्होंने पूछ बताया कि आपको ओके, जो अच्छे से बता सकते हो आप उसके बारे में। मतलब आपके ऊपर था वो चीज, है ना? हाँ, मेरे ऊपर ही था, उन्होंने ओके, बस यही बताया कि आपको जो अच्छे से बात कर सकते हो जिसके बारे में ओके, आप वही बताइए। जो मुद्रा आता है वो करके बताइए उसके बारे में। ऑलराइट। हम्म। अगर कोई टॉपिक आपको बोला है तो उसमें कितना देर आपको बोलना पड़ा, वो उन्होंने स्पेसिफिक बोला है क्या, 1 मिनट या 2 मिनट? नहीं नहीं, अगर आप स्टार्ट करते हो किसी टॉपिक के ऊपर कंटिन्यू बोलना नॉन स्टॉप, तो उन्हें पता चल ही जाता है कि आपको इस टॉपिक के बारे में कितना नॉलेज है। तो और अगर जो बीच बीच में अगर आप अटक रहे हो कुछ, तो वो हेल्प भी करते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप अगर कंटिन्यू 2 मिनट या 3 मिनट बहुत ज्यादा हो गया तो ज्यादा नहीं करते हैं वो लोग। मतलब इन शॉर्ट आपके कॉन्फिडेंस के ऊपर है, आप कितने कॉन्फिडेंटली या बोलते हो। कॉन्फिडेंस लेवल आपका मेन होना चाहिए अच्छा, तो हो जाता है, आपको कितना नॉलेज है उस पर पता चल जाता है उन्हें। प्रैक्टिकल के लिए ही डर है, क्योंकि एमसीक्यू तो हो जाता है लेकिन प्रैक्टिकल मतलब या सामने है तो पहला नहीं नहीं, वही। हाँ, स्क्रीन फेस करना आपको थोड़ा सा वो मुझे भी हुआ था। स्टूडेंट्स को मैं भी इतना सिखाती हूँ तब मुझे इतना फियर नहीं रहता है, बट एग्जाम का नाम लिया तो थोड़ा सा फियर हो ही जाता है। बट कुछ नहीं, वो लोग इतने कोऑपरेटिव है, मैंने सोचा भी नहीं था, मुझे एग्जाम मतलब समझ में आया कि बहुत डर लग रहा था, बट उन्होंने इतना अच्छे से मुझे परफॉर्म करने के लिए कहा। मैं कुछ अगर कहीं गलत भी हो गई तो उन्होंने मुझे खुद ही उन्होंने बताया कि नहीं ऐसा नहीं लतिका जी, ऐसा करना है। या टॉपिक उन्होंने दिया था मुझे, तो मैं उसमें भी थोड़ा सा हट के टॉपिक में चली गई थी, तो उन्होंने बताया लतिका जी ये इसमें है नहीं, तो आप उसमें दूसरा भी अगर आपको कुछ अलग टॉपिक चाहिए, उन्होंने ये भी बताया कि आप जिस टॉपिक पे अगर अच्छा बोल सकते हो, आपको लग रहा है कि नहीं इसका अच्छा नॉलेज है आपको, आप वो टॉपिक पे भी बोल सकते हो, इतना मतलब वो फैसिलिटी देते हैं अपने को। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप चूज कर सकते हो टॉपिक भी। तो टीचिंग के लिए ना, कि जिसके ऊपर आपको कोई भी हाँ, आपको जिसके ऊपर टॉपिक के ऊपर बताना है जैसे डिटेल में वो। ये अच्छा आपने दे दिया, कभी एक स्पेसिफिकली के लिए हम लोग भी नहीं नहीं, रेडी। बहुत मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना अच्छा मेरा एग्जाम होगा, मैं तो बहुत टेंशन में थी। बट बाद में जब एग्जाम हो गया तो मुझे इतना लगा कि एकदम रिलीफ हो गया कि वाह, कितना मतलब इतना मैं डर रही थी, उतना डरने की कोई बात नहीं है एक्चुअली। अच्छा हाँ, ये आपका थ्योरी में नॉलेज आपके, हाँ,
होना चाहिए। एनाटॉमी एनाटॉमी वगैरह से तो नहीं ना पूछते ये लोग थ्योरी में, वहां पे जो नहीं, एक्चुअली टॉपिक में तो है कि मतलब आपको सिलेबस में तो एनाटॉमी के बारे में पूछा गया है, हाँ बट ऐसा मुझे नहीं प्रैक्टिकल, पूछा गया है ऐसे। अच्छा आपको नहीं पूछा। प्रैक्टिकल में वाइवा ऐसा कुछ पूछा नहीं है उसके बारे में नहीं नहीं, वाइवा के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं पूछा। अच्छा, कि उसके जो वर्डिंग्स है साइंटिफिक वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है। बाकी योगास का तो ठीक है, हम बता सकते हैं, हम वो बोल सकते हैं, वो बोलते हैं ना फ्लो में। ये एनाटॉमी का पार्ट या आता है तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, बिकॉज वी नो क्या हाँ, है बट हम वो बता नहीं पाते कि वो प्रॉपर वर्डिंग्स यूज करना होता है, वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है। सो गुड। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है थोड़ा, लेकिन आप जैसे आपको सिलेबस जो मिला है उससे आप अच्छे से रीड कर लोगे ना, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि सिलेबस के बाहर का कुछ भी नहीं पूछते हैं वो लोग। ओके। जो हमें सर ने जो दिया हुआ है। अपना थोड़ा सा थ्योरी का बताइए, कैसा एक्सपीरियंस रहा? लाइक 1 मार्क्स के ही क्वेश्चन नॉर्मल सारे थे या फिर कुछ मैचिंग वगैरह के भी थे? नहीं, एक दो क्वेश्चंस तो थोड़े से मतलब थ्योरी में थे जो हार्ड थे, क्योंकि थ्योरी का भी बैकग्राउंड पूछा गया था जो मुझे नहीं आ रहा था, क्योंकि इतना डिटेल स्टडी तो हम थ्योरी में नहीं करते हैं। आउट ऑफ सिलेबस कुछ भी नहीं आता है, जो आपने पढ़ा हुआ है सिलेबस में से ही आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको डरने की जरूरत है। बट आपका रीडिंग होना चाहिए रोज, जो आप रेगुलर जो आपका पोर्शन है उसमें से आपने रोज करना चाहिए। बाकी नॉर्मल सब क्वेश्चन बहुत अच्छे थे, और टाइम आपको स्लॉट जो दिया है वो बहुत ही ज्यादा है। ज्यादा है, हाँ। उसके हिसाब से आप अच्छे से मतलब आप काफी सारा स्टडी करके भी आप अच्छे से सोच के, फिर अगर एक आंसर आपका रॉन्ग होता है आप फिर से पीछे जाके आप आंसर को करेक्ट कर सकते हैं। राइट, इतना टाइम आपके पास रहता है। ओके। हाँ ठीक है, नीरज जी बोलिए। ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होते हैं थ्योरी में? टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस? ओके, ये देखिए लेवल पे डिपेंड करता है। लेवल नहीं, 1 लेवल और हाँ, लेवल 1 और लेवल 2 में दोनों में सेम है, दोनों में 60 क्वेश्चंस होते हैं और 120 मिनट्स होते हैं आपके पास, 2 घंटे। और देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, ऑल द क्वेश्चंस आर एमसीक्यू। या नेक्स्ट, शिवानी जी, यू वांट टू से ये समथिंग? बेनिफिट अच्छा है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें, ये Yes. अच्छा है, नहीं तो मार्क्स तो काफी उसमें ही चले जाएंगे। शिवानी जी, यू वांट टू से समथिंग? Hand is raised. Okay. थैंक यू लतिका जी। हमारे साथ वेद जी भी हैं, तो यू कैन स्टे देयर। वन मोर थिंग, प्रैक्टिकल पूछिए। में अगर हम लोग लैंग्वेज चूज करते हैं तो लाइक कैसा चूज करना एडवाइस होगा? बिकॉज योगा का कैसा हम लोगों को हिंदी भी कंफर्टेबल है, इंग्लिश भी कंफर्टेबल है, तो उसमें जरा कंफ्यूजन है कि कौन सा लेना बेटर होगा। वो आपके ऊपर डिपेंड है, आप कौन सा चूज कर रहे हो। वैसे तो ऑप्शंस दोनों ही है उसमें, हिंदी और इंग्लिश, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके लिए आपको इंग्लिश अगर बेटर है तो इंग्लिश आप करिए, या तो फिर हिंदी में है तो हिंदी में भी चलेगा, ऐसा कोई प्रॉब्लम। बट मोस्टली Okay. प्रैक्टिकल तो वो लोग हिंदी में ही पूछते हैं, ऐसा कोई ये हाँ, नहीं है। प्रैक्टिकल का ही मेन था कि जैसे सब हम लोग जैसे इंग्लिश में भी बोल सकते हैं, पर कई बार कुछ टर्म्स ऐसी हैं, कईयों का हमें इंग्लिश में अच्छा आता है, कई का हिंदी में अच्छा है। अगर सपोज मैंने इंग्लिश चूज कर लिया तो मैं हिंदी में मतलब बोल सकती हूँ कि नहीं? ऐसे होता है ना कि आपकी तरफ से कि जैसे अब चल हिंदी सकता में है, मैंने ऐसा कोई चूज किया प्रॉब्लम नहीं है। मिक्स हो जाता है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना, अगर हिंदी चूज किया और हम लोग इंग्लिश से भी नहीं नहीं, बोल रहे कोई हैं। प्रॉब्लम नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेनली नॉलेज है या नहीं उतना जानना है हमको। हाँ, मेन वही आपका नॉलेज कितना है, कहाँ तक आप जानते हो उसके बारे में, वो मेन होता है, ऐसा कुछ नहीं। मैम, ये प्रैक्टिकल में मंत्रा या फिर प्रेयर के बारे में पूछते हैं क्या? चैंट्स वगैरह, श्लोक वगैरह? हाँ, मंत्र आप जो, हाँ नहीं नहीं, मंत्र के बारे में पूछा जाता है। जैसे आप स्टार्ट करते हैं तो शांति पाठ से भी आप एंड करते हैं, तो वो क्यों करते हैं कभी ये भी पूछा जाता है। मंत्र का मीनिंग पूछा जाता है। मुझे तो नहीं एक्चुअली पूछा था उन्होंने, मैंने जब स्टार्ट किया तो मैंने यही पहले बोलना स्टार्ट किया कि मंत्र का मीनिंग, तो उन्होंने कहा कि वो जरूरत नहीं है आपको, आप जैसे स्टार्ट कर सकते हो वैसे ही करिए, नॉर्मल जो आप मंत्र से स्टार्ट करते हैं प्रार्थना से, उसी से स्टार्ट करना है आपको। तो जो मीनिंग सिलेबस, पूछ सकते हैं, बट ये है आपको मीनिंग से, हाँ मीनिंग के साथ आपको रेडी रहना चाहिए। ओके, तो जो सिलेबस में कितने प्रेयर्स मंत्र आते हैं आपको वो भी, हाँ प्रेयर्स तो है उसमें। प्रेयर्स तो हम देखिए नॉर्मल योगा भी हम जब कहीं क्लास अटेंड करते हैं तो प्रार्थना से ही स्टार्ट होता है, मंत्र से ही स्टार्ट किया जाता है।
तो इसके लिए मंत्र क्यों बोला जाता है, मंत्र का क्या मीनिंग होता है, ये सब वो पूछते हैं। तो जो सिलेबस में है वही प्रेयर या फिर मंत्र बोलना है ना, या फिर हम हाँ लोग? हाँ हाँ वही, आपको आउट ऑफ सिलेबस कुछ भी नहीं है इसमें मैम, कुछ भी डरने की जरूरत नहीं है, जो है इसी में से आपको बोलना है। ओके, ठीक है। अभी वेद महाजन जी को देखते हैं लेवल 3 के लिए किस तरह का उनका एक्सपीरियंस रहा। सो नेक्स्ट वी हैव फॉर लेवल 3। गुड इवनिंग वेद महाजन जी, प्लीज टर्न ऑन योर माइक एंड कैमरा। Okay. ओके, Thank you. वेद महाजन जी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं आप? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और आपका लेवल 3 हो गया, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। थैंक यू। ओके। चलो, आप लोगों की मेहनत थी, आप लोगों ने तो- गाइड किया था, जैसे जैसे चलते हो गया। ठीक है, शुरू से शुरू करते हैं मैम। आप मतलब अपना बैकग्राउंड थोड़ा बता दीजिए, आप एक्चुअली में लाइक प्रोफेशनली क्या करते हैं, एंड देन हाउ यू स्टार्टेड योगा, आपने स्टार्ट कैसे किया योगा जर्नी? ऐसे तो योगा में मेरी कोई ऐसे नहीं था कि मैं कोई मतलब प्रोफेशनल योगा प्रोफेशनल थी। योगा में ऐसे ही अपने शौक से ही करती थी, काफी देर से करती थी। वो वही जैसे होता है कि लाइफ में थोड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं, बीमार हो गया बंदा या कोई हो गया, तो फिर थोड़ा थोड़ा शुरुआत की, तो फिर मेरे को एक मतलब काफी इसमें इंटरेस्ट था, तो मैं चलती गई। ये टीवी से देखना या बुक्स हो गई योग संस्थान की, पढ़ पढ़ के मैंने कर लिया था। अब लास्ट में मेरे को लगता था कई बार कि सिखाती भी थी, मैं बच्चों को पढ़ाती थी, ट्यूशन लेती थी तो बच्चों को पढ़ाती थी, तो वहाँ योगा भी साथ साथ उनको सिखाती थी कि कैसे आप मेमोरी पावर बढ़ा सकते हो, कैसे कंसंट्रेशन बढ़ा सकते हो, ये चीजें छोटी मोटी। मतलब ज्यादा मैं प्राणायाम की तरफ थी, आसन वगैरह मैं कम करती थी, तो ये प्राणायाम की तरफ बच्चों को ये चीजें टेक्निक सिखाती थी कि कैसे हो सकता है आपको पढ़ाई में, या आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी कैसे डेवलप हो सकती है। तो फिर अभी रिसेंटली कोई 2 साल पहले, 1 साल पहले की बात है, मेरी बहू है, उसने देखा होगा ना ये, तो उनको पता था कि मम्मा को बड़ा शौक है, ये करती रहती है, तो कहते हैं मम्मा आपका ये कोई कोर्स आ रहा है, उनको किसी ने, उनकी फ्रेंड ने किसी ने बताया होगा, तो ये अगर करना है तो कर लो। तो मैंने भी देखा, तो मेरे को भी लगा कि चलो है तो सही, ये तो थोड़ा कुछ सीखने को मिल जाएगा। तो फिर मैंने ज्वाइन कर लिया यहाँ, और वैसे बड़ा फायदा हुआ, बहुत कुछ सीखा मैंने। ओके, तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल का एक्सपीरियंस बताइए। मेन तो वही है कि कैसे क्या क्या उन्होंने पूछा, और फिर कितना डिफिकल्ट था या आसान था? नहीं, डिफिकल्ट तो नहीं था, वही जैसे लतिका जी ने भी बताया कि जैसे सिलेबस है आपका, उसी के अकॉर्डिंगली पूछते हैं। अब जैसे मेरा लेवल 3 था, तो मेरे को जैसे मंत्र का उन्होंने बताया कि उनको कोई खास नहीं पूछा था। लेकिन मैंने जैसे मंत्र किया है रिसाइट शुरू में, तो उन्होंने पहले मेरे को यही पूछा कि इसके बारे में आप क्या जानते हो। मैंने मीनिंग बताया सतोमा सदगम्य वाला, तो फिर मैंने कहा कि ये बृहदारण्यक वेद से लिया गया है। फिर एक्चुअली उन्होंने मेरे को वही, मैंने मतलब खुद ही लीड किया इंटरव्यू को, जैसे कहते हैं ना कि आप खुद लीड कर सकते हैं, बताती गई। अब उन्होंने कहा कि आपका नाम वेद है, इसलिए आपको वेद के बारे में क्या ज्ञान है। फिर वेद का एक्चुअली मेरे को, मैंने वेदों का थोड़ा किया भी हुआ था अच्छे से, जैसे आप लोगों ने करवाया था, फिर मैंने किया हुआ था उसको अच्छे से, और मैं अच्छे से दे पाई उनका आंसर। जैसे उन्होंने पूछा कि वेद जो है ये कौन सा वेद है, यजुर है कि शुक्ल है, वो मेरे को मीनिंग पता थे, यजुर क्या होता है, सॉरी यजुर नहीं, ब्लैक एंड व्हाइट, शुक्ल और कृष्ण, तो वो मेरे को, मैंने किया हुआ था, तो मैं उनको रिप्लाई करती गई। तो इसमें उन्होंने मेरे को काफी पूछा, इसका वेदों का काफी, मतलब जो मैं वाइवा आपका हो गया ज्यादा एक्चुअली। हाँ, नहीं मतलब ज्यादा नहीं कह सकते, जैसे लेवल है किसी के हिसाब से उन्होंने इसमें मेरे को काफी पूछा। और बाकी फिर वही आसन हो गया, मेरे को वक्रासन बोला था उन्होंने, कोई ज्यादा, जैसे मैं डरती थी बड़ा, शीर्ष आसन मेरे को नहीं आता था करना, तो कहते थे कि लेवल 3 में शीर्ष आसन जरूरी होता है, तो वैसे उन्होंने पूछा ही नहीं मेरे। सूर्य नमस्कार का पूछा, पादहस्त आसन पूछा, और बस आसन यही एक तो आसन, अब बाकी वही मुद्रा पूछी। अच्छा, सूर्य नमस्कार पूरा बोला उन्होंने मंत्र के साथ या फिर ऐसे ही? नहीं, सूर्य नमस्कार का भी ज्यादा नहीं पूछा मैंने, बस एक पादहस्तासन ही पूछा। ओके, सूर्य नमस्कार से एक स्टेप बस पूछा, पादहस्तासन। हाँ। ओके, मुझे लगा फुल वो करने के लिए बोल रहे। नहीं, सूर्य नमस्कार नहीं, मेरे को यही था, मेरे को भी कि सूर्य नमस्कार पूछते हैं, आपने कहा था कि हाँ, फुल
मतलब अच्छे से sometimes. करना, मैंने किया हुआ हाँ, था अच्छे से सूर्य नमस्कार, हम्म, लेकिन उन्होंने उसमें पूछा नहीं। मंत्र भी मैंने अच्छे से किए हुए थे, okay. लेकिन वो नहीं उन्होंने पूछा मेरे। अच्छा, हाँ। ऐसे भी उनका 20 to 30 मिनट चलता है ना, तो उसमें जो पूछना है उतना ही पूछ सकते हैं, सारा कुछ पूछ भी नहीं सकते, है ना। हाँ हाँ हाँ। और बाकी फिर वो एनाटमी का जैसे हो गया, उसमें मेरे को उन्होंने ये पूछा था कि कार्डियक प्रॉब्लम्स के लिए कौन से योग करने चाहिए, फिर स्मोकिंग को अवॉइड करने के लिए, स्मोकिंग को क्विट करने के लिए क्या कर सकते हो, वो थोड़े जो रिप्लाई करने थे। जल नीति वगैरह बताया मैंने कि स्मोकिंग के लिए जल नीति तो बड़ी अच्छी है, कहते जल नीति आप करते हो, फिर वो बताया मैंने। फिर उन्होंने इसका ये जो है क्रियाएं नहीं, कपालभाति, अग्निसार वगैरह ये क्रियाएं, हाँ। ये पूछी उन्होंने मेरे को। तो इसमें तो डेमो नहीं देना होगा, इसमें उसके बारे में, नॉलेज के बारे में बताना था, किसका? अग्निसार के बारे में। अग्निसार का मेरे ख्याल में हमारे कोर्स में नहीं था, मैं वैसे करती थी तो मेरे को पता था। ओके ओके, तो उन्होंने करने के लिए बोला या फिर बस ऐसे ही पूछा? नहीं बस नहीं नहीं, मैंने ही कुछ वही, मैंने ही कुछ बोल दिया ना, उन्होंने पूछा शायद कि आप जल नीति करते हैं, आप क्या क्या करते हैं, फिर मैंने बताया उनको कि मैं ये करती हूँ। फिर उन्होंने अग्निसार के बारे में भी पूछे। मैं करती हूँ एक्चुअली, जो रोज रूटीन में करती हूँ ना मैं, उसमें मैं अग्निसार भी करती हूँ, तो इसलिए उन्होंने पूछ लिया। एक आधी चीज कुछ और भी पूछी थी, मैं भूल गई हूँ वो भी हमारे कोर्स में नहीं था, लेकिन उन्होंने मतलब जैसे मैंने मेंशन कर दिया ना उस चीज को, तो उन्होंने पूछा। राइट। समटाइम्स वो ऐसे भी पूछते हैं, वो ऐसा नहीं कि मार्क्स के लिए ही पूछ रहे हैं, ऐसे ही पूछते हैं, लाइक इंटरेक्ट करते हैं। और बड़ा फ्रेंडली वो था, एटमॉस्फेयर था, कोई ऐसे मैं कोई घबरा नहीं गई थी। उन्होंने मतलब ऐसा नहीं लगा मेरे को कि कोई जैसे बड़ी मैं कोई वो इंटरव्यू दे रही हूँ या कोई वाइवा दे रही हूँ ना, नॉर्मल ऐसे चल रही थी बात आराम से। वो इनकरेज करते हैं, कंफर्टेबली हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। उनको अलग से इंस्ट्रक्शन मिला हुआ होता है टीचर्स को कि आप बिल्कुल सपोर्ट कीजिए। हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ, समवन वांटेड टू आस्क समथिंग। हाँ, एडवांस में आपसे कौन सा आसना बोला था? वो वक्रासन नहीं बोला था कि कुछ और भी करवाया? वक्रासन नहीं बोला, हाँ वही बोला उन्होंने, वक्रासन। और मेरे को, मैं वैसे भी पूरा नहीं कर सकती थी, पूरा ट्विस्ट नहीं कर सकती थी, मैंने कहा मैं इतना ही कर सकती हूँ जितना मैं कर सकती थी, बस उतना ही बता दिया मैंने। मैम आपको इवैल्यूएट करने के लिए नहीं पूछा था कि कोई आपके सामने अगर कर रहा है और इनको आप इवैल्यूएट कीजिए लेवल 3 के लिए? नहीं, वो मैं भी सोच रही थी कि पूछना तो चाहिए, लेकिन वो भी मेरे को पूछा था उन्होंने, क्योंकि अपने इसमें इवैल्यूएशन एज 10 मार्क्स के लिए है ना सिलेबस में। हाँ 20 मार्क्स एक्चुअली। 20 मार्क्स नहीं पूछा कुछ उन्होंने। ओके ओके। एक्चुअली मुझे लगता है मोस्ट ऑफ इट डिपेंड्स अपॉन इवैल्यूएशन के लिए मुझे बोला गया था। ओके, हाँ बोलिए। नो बट मुझे बोला गया था, टीचर्स ने मुझे बताया था कि आप एज अ टीचर आप इवैल्यूएट करिए स्टूडेंट्स को, वो मुझे बताया गया था, उन्होंने बताया वैसा। तो क्या आप एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो मैम? क्या मेरे को कुछ नहीं, शायद लतिका जी ने अभी रिप्लाई मुझे दिया। उन्होंने एक्सप्लेन कर, मुझे उन्होंने एक टॉपिक के ऊपर एक्सप्लेन करने के लिए कहा था। वो टॉपिक तो एक्चुअली मुझे याद नहीं है, बट उन्होंने कहा था कि वो टॉपिक आप डिस्कस करिए स्टूडेंट के साथ, यही बताया गया। बाकी उन्होंने ये नहीं कहा कि आप आसनास के बारे में डिस्कस कीजिए या कुछ, किसी एक टॉपिक के ऊपर उन्होंने कहा था कि आप स्टूडेंट्स को कैसे आप समझाओगे वो टॉपिक, किस तरह से आप उनको इजी लगे ऐसे लैंग्वेज में आप उनको बताओगे, वैसे उन्होंने कहा था। बाकी आसनास के बारे में उन्होंने ऐसा नहीं कहा था। हाँ, वो तो पार्ट ऑफ वाइवा का टीचिंग टॉपिक होता है। प्रैक्टिकल, हाँ, दैट इज फॉर लेवल 2। लेवल 3 के लिए मैं पूछ रही थी, वो स्पेशल इवैल्यूएशन स्किल्स होता है कि आपके सामने वो उनमें से कोई परफॉर्म करता है एंड यू हैव टू इवैल्यूएट उन्होंने कहाँ पे गलती की है, कहाँ पे करेक्शन हुआ है। एज अ टीचर, लाइक सपोजिंगली इट इज एक्सपेक्टेड वंस यू बिकम एन इवैल्यूएटर, इट इज एक्सपेक्टेड यू कैन टेक एग्जाम्स and you can even teach people, तो you have to have that knowledge। तो वो knowledge के हिसाब से मुझे पूछना है कि कैसे उन्होंने उनका अप्रोच कैसा था। नहीं पूछा आपको? तैयारी से तो गई थी कि हाँ पूछेंगे, लेकिन पूछा नहीं। हाँ, क्योंकि हमने तो अभी ऐसे जैसे क्लासेस करते हैं योगपीठ में, महाबोधि योगपीठ में, तो हमने तो मैम ने तो हमसे काफी कुछ प्रैक्टिस करवा ली है कि कैसे। So you have to be ready, that is the main point। वहाँ क्या पूछेंगे नहीं पूछेंगे, उनके मूड के ऊपर काफी कुछ डिपेंड होता है। हो सकता है पिछले कैंडिडेट से पूछा हो या फिर अगले कैंडिडेट से पूछा हो, इनसे नहीं पूछा, ऐसा भी हो जाता है। या तो अगर उनको लगता है आपका, इनका जैसे वेट मैडम का तो इनको लगा ही होगा कि उनका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है, तो उन्होंने ज्यादा तकलीफ ही नहीं दी होगी उनको। नहीं, जैसे मेरे को ना मंत्रों का था, गीता के मंत्र मैंने बड़े अच्छे से किए हुए थे। आपने कहा था कि वो मंत्र जरूर पूछते हैं लेवल 3 वालों को,
हाँ, लेकिन मेरे को वो भी नहीं पूछा, मैं वो बहुत अच्छे से की श्लोक, हाँ, वही डिपेंड करता है कि कैसा चल रहा है, क्या पूछा क्या नहीं। पतंजलि के मेरे को बड़े पूछो, पतंजलि के योग ओके, सूत्र, हाँ, हाँ पतंजलि का ही सारा पूछा उन्होंने, पतंजलि का कैवल्य क्या होता है, फिर पतंजलि के सूत्र कौन कौन से आते हैं आपको, कौन से पाद हैं, पतंजलि का ओके, काफी पूछा। काफी डिटेल में पूछा फिर। तो हाँ, सूत्र आपने बताया, तो फिर उन्होंने मीनिंग भी पूछा होगा फिर। मीनिंग भी पूछा, हाँ। और एक उन्होंने पूछा था जो है ना, चित्तस्य धारणा, क्या नाम है, देश काले चित्तस्य धारणा, देशबंधस्य चित्तस्य धारणा, लास्ट में है ना, हाँ चित्तस्य धारणा में वो वाले का उन्होंने पूछा था कि हाँ, मैं उस समय कुछ बीच में से चित्तस्य भूल गई थी, तो कुछ मैंने कुछ और बोल दिया था। फिर उन्होंने मेरे को ये पूछा कि हाँ, अगर अब जैसे ये मंत्र है, इनको लर्न करने का क्या तरीका रखा हुआ आपने, कैसे करते हो लर्न इनको। मैंने कहा ऐसे में जैसे हिंदी मेरे को आती है, तो हिंदी और संस्कृत के बहुत ज्यादा मिलते जुलते अक्षर ही लफ्ज ही होते हैं ये, तो बस जैसे चित्त है उसके साथ श लगा दिया अगर, तो मतलब है हिंदी का ही वर्ड है वो चित्त भी। ये पूछा उन्होंने कि लर्न कैसे करते हो वो पूछा था। और कह रहे थे क्यों पढ़ना चाहिए पतंजलि योग सूत्र, पतंजलि योग सूत्र क्यों पढ़ना चाहिए, ये पूछा था। एक्चुअली वो टाइम पे स्टार्टिंग ही याद नहीं आता है, भले हमने कितना भी लर्न किया हो, मेरा तो ऐसे ही हो गया था। व्हेनेवर आई थिंक ऑफ इट, वो स्टार्ट में भूल जाती हूँ कौन से वर्ड से स्टार्ट करना है वो पर्टिकुलर सूत्र। बिल्कुल, और ऐसे ही टॉपिक जब वो देते हैं तो वहां पे थोड़ा सा, हाँ, बट देन इट इज गुड ऑन देयर साइड कि वो थोड़ा हेल्पफुल भी होते हैं। आई एक्चुअली सेड कि जी मुझे ऐसे तो मैं रेगुलरली बोल लेती हूँ, लेकिन आपके सामने मुझे स्टार्टिंग नहीं याद आ रहा है, तो उन्होंने मुझे स्टार्टिंग का वर्ड बता दिया था। देन हो गया था। लेकिन वो मुझे लगता है अभी सबके एक्सपीरियंस सुन रहे हो, तो मुझे लगता है खाली शायद मेरे साथ ही नहीं, सबके साथ ऐसे होता है। एक क्वेश्चन था, एक्चुअली मैंने थोड़ा, शायद मेरी गलती है, मैंने लेट ज्वाइन किया। जैसे अभी हमारा लेवल 2 में रजिस्ट्रेशन हो चुका है, तो लेवल 3 में करने की जरूरत है फिर से पूरा? जैसे अभी उसमें मेरे को प्रोफाइल वगैरह बनाने के लिए बोला था, व्हेन आई वाज रजिस्टरिंग फॉर लेवल 2, तो प्रोफाइल बनाना था। जैसे जो भी मैंने इतने सालों में योगा का करियर में मैंने जो भी किया है, ऑल दोस थिंग्स विल आई हैव टू मेक इट अगेन, और इट इज रजिस्टर्ड विद YCB ना? नहीं, आपने तो जो रखा था बना के वो आपके पास है। होगा मेरे, हाँ है ना, हाँ सेम यू कैन यूज। और यही मुझे पूछना भी था लतिका जी से और वेद जी से, कि उन्होंने कुछ प्रोफाइल के बारे में बोला कि आप प्रोफाइल दिखाइए, आपने कुछ बनाया है योगा का, जो एक्सपीरियंस है आपका पहले का। ना वो उन्होंने पूछा नहीं, ऐसे उन्होंने पूछा था कि आप योगा में कुछ मतलब पढ़ाते थे कहीं या करवाते थे योगा कहीं आपका। मैंने कहा मैं नहीं करवाती थी, वही जैसे मेरे को आदत बनी गई है, उसी समय मेरे को बोलना चाहिए था कि मतलब जो मैंने जहां कोई कैंप लगाए थे, अभी पीछे मैंने वुमेन्स डे पे एक वेबिनार भी किया था पीछे 8 को ना, पिछले महीने, तो वो भी किया था। फिर और एक आधा मैंने अभी कैंप लगा दिया था छोटा सा ही अपने मोहल्ले वालों का ही, तो वो मैं भूल गई उनको बोलना उस समय, वो बाद में मेरे को याद आया कि वो उस समय बोलना चाहिए था मेरे को। लेकिन आई थिंक अपने प्रोफाइल में तो होता है ना, वो रह गया मेरा। ओके, उन्होंने मतलब कोई PDF नहीं मांगा अलग से, प्रोफाइल अलग से मांगा नहीं आपसे? ना मांगा नहीं सर, एग्जाम के टाइम पे उन्होंने जैसे कहा था कि आप PDF, आपने जो भी फील्ड एक्सपीरियंस आपका है, आप कितने क्लासेस अटेंड कर चुके हो या किसको ट्रेन कर चुके हो, उनका आप पूरा एक बायोडाटा जैसे बना के आपने देना है, और वो PDF करके आपको भेज देना है उनके ईमेल आईडी पे। जैसे उनको फिजिकल हेल्थ इशू किसी का था, तो उन्होंने क्लास स्टार्ट करने के पहले की हिस्ट्री और क्लास के बाद की हिस्ट्री, वो पूरा आपको उनको PDF करके भेजना था। तो वैसे मैंने जिनको ट्रेन किया है तो मैंने उनका सब भेज दिया था, उसके मार्क्स भी उसमें इंक्लूड होते हैं। रजिस्ट्रेशन के टाइम पे ना मैम? हाँ, रजिस्ट्रेशन, हाँ मतलब स्पेशली प्रैक्टिकल के टाइम पे उन्होंने ऐसे कुछ बोला नहीं था ना आपको? उन्होंने कहा था प्रैक्टिकल जो स्टार्ट होने के टाइम पे 1 घंटे पहले आपने, उन्होंने टाइम दिया था, वो टाइम पे आपको उनको सेंड करना था। मुझे तो ऐसे कुछ नहीं बोला गया था, मुझे भी नहीं बोला गया था। मेरा लेवल 2 दिया मैंने। आपके टाइम पे पूछा गया था? मैंने भी लेवल 2 ही दिया था। हाँ, तो मुझे ऐसे कुछ बोला तो नहीं गया था 1 घंटे पहले, क्योंकि एक्चुअली कैसे वहाँ टाइमिंग भी उनका वेरी हो जाता है। जैसे अभी मुझे एक्चुअली नेक्स्ट डे 3 o'clock का टाइमिंग मिला। टाइमिंग का तो बहुत इशू प्रैक्टिकल के लिए। हाँ,
प्रैक्टिकल के लिए मुझे नेक्स्ट डे 3 o'clock बोला था, लेकिन उन्होंने मुझे ये भी बताया था 1-2 घंटे आगे पीछे भी हो सकता है। बट देन नेक्स्ट डे 10:30 मॉर्निंग ही मुझे कॉल आ गया कि आप रेडी हो क्या, अगर आप रेडी हो तो आप आ जाइए 10-15 मिनट में ऑनलाइन आपका ले लेंगे करके। ओके, ये तो ज्यादा वेरी कर गया। मेरे पास मेरा 3 o'clock का टाइमिंग एंड 11 o'clock आई हैड टू अपीयर फॉर दैट। इट वाज गुड फॉर मी, आई वाज ओके विद इट, बट देन उनका फोन आ गया अगर आप रेडी हो तो आ जाइए। तो फटाफट सब अरेंजमेंट करके फिर मुझे भी दौड़ना पड़ा। मेरे साथ भी सेम यही इशू हुआ। हाँ, मेरे साथ भी यही हुआ था। तो मेरे को भी पहले ही बोला था उन्होंने फोन करके कि अगर आप रेडी हो तो। फिर मैंने कहा चलो आधा घंटा। एक्चुअली पहले उनका सर्वर का बहुत प्रॉब्लम था। हाँ, कई बार ऐसे होता है, नेट का इशू हो जाता है, सर्वर का प्रॉब्लम होने की वजह से मेरा लॉगिन भी नहीं हो पा रहा था और बहुत किसी सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे। करेक्ट। हाँ हाँ, तो मतलब तो किसी बहुत एक सारे का अगर स्टूडेंट्स का समझो ऐसा हुआ नेट था। का इशू उन्होंने रहेगा बताया तो कि वो ऐसा आपका अगर एग्जाम इशू बाद आपका में भी ले प्लीज लेते हैं। टेंशन ना ले, तो जैसे टाइम आपको सुटेबल होता है वो टाइम के हिसाब से भी आप उनको टाइम दे सकते थे। तो मैंने उन्हें कहा था सर 3 बजे मेरा पॉसिबल नहीं है, मेरा क्लास चलता है। तो उन्होंने बट देन इतना है कि वो नेक्स्ट डे प्रैक्टिकल वाला टाइम पूरा दिन अपने एग्जाम के लिए ही खाली रखो, कुछ उस दिन रखिए ही नहीं मुझे। मतलब मैं वही अभी दिमाग में लेके बैठी हूँ कि नेक्स्ट दिन जब भी मेरा प्रैक्टिकल होगा पूरा दिन मैं और कुछ नहीं रखने वाली। स्पेशली लेडीज जिनको खाना वाना बनाना होगा सब बना के रेडी रखो, कुछ भी नहीं रखो, कभी भी उनका फोन आ सकता है। थ्योरी का तो फिक्स रहता होगा। हाँ, थ्योरी का तो फिक्स था। थ्योरी का तो फिक्स। ओके ओके, अभिषेक जी आप कुछ पूछना चाहते हैं? अलग-अलग। हाँ जी सर मैं पूछ रहा था कि जो तीनों कोर्स कंटेंट आपने जो दिखाए थे वेबसाइट पे, महाबोधि योगपीठ की वेबसाइट पे, क्या आप उनका ड्यूरेशन और फीस भी कवर करने वाले सेशन में या वो अलग से? ओके, इट इज रिटन ऑन दी वेबसाइट, जो ड्यूरेशन भी है ना वो भी वहाँ पे मेंशन है। ओके, और मतलब इट्स ऑल लाइक कंप्लीटली हमें ऑनलाइन ही वो पढ़ाई है और रिकॉर्डेड सेशंस है कुछ लाइक 1-to-1 सेशन भी या कुछ क्लैरिफिकेशन क्लासेस भी होती हैं या जस्ट रिकॉर्डेड कंटेंट है वो हमें गो थ्रू करना है? इट्स नॉट रिकॉर्डेड सेशंस, लाइक इट विल बी लाइव क्लास, दैट टाइम यू कैन इंटरेक्ट एज वी आर इंटरेक्टिंग नाउ, है ना? ओके, और ये मीटिंग जैसे रिकॉर्ड हो रहा है वैसा हम रिकॉर्ड करके फिर देते हैं, दैट इज फॉर रिवीजन पर्पस। फर्स्ट क्लास विल बी लाइव। अच्छा, वहां पे आप इंटरेक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। Okay, anyone else want to ask any question? यस सर, मुझे पूछना था प्रैक्टिकल और थ्योरी एक ही दिन में होता है क्या या फिर अलग अलग होता है? अलग अलग होता है। 2 दिन लगातार होते हैं, पहले दिन थ्योरी होता है, दूसरे दिन प्रैक्टिकल। अच्छा, तो उसमें कभी-कभी ऐसा नहीं, कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि आपको अगर वो पूछते भी हैं कि आप दोनों अगर एक ही दिन में दे सकते हो तो आप बता दीजिए कौन से टाइम पे आप अवेलेबल हो। वो आपको पूछते हैं तो आप बता सकते हो। एक ही दिन अगर आपको देना है तो एक ही दिन में भी पॉसिबल है उनके लिए, आपके लिए तो वो कर लेते हैं एडजस्ट। अच्छा, थ्योरी दिया और उसमें मतलब क्वालिफाई करने के बाद ही प्रैक्टिकल दे सकते हैं ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। थ्योरी आपका मॉर्निंग में है तो आपका प्रैक्टिकल दोपहर को भी एडजस्ट हो जाता है या फिर दोनों आगे अल्टरनेट डेज में भी हो जाते हैं। जैसे आज का आपका प्रैक्टिकल हुआ तो फिर थ्योरी उसके पहले हो गया, ऐसा भी होता है। तो वो हम लोग डिसाइड करते हैं या वो लोग बोलते हैं हमें? वो लोग 2 दिन चूज करते हैं, उसमें से पहले ही आपको अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप उनको पहले ही बता दीजिए कि आप कल अवेलेबल नहीं हो, आज कल अवेलेबल हो, ऐसे। तो वो फिर बता देंगे, फिर आप कल करोगे या आज करोगे। फिर उनकी तरफ से यूजुअली एक लिस्ट आ जाता है जिसमें टाइम स्लॉट हर एक के लिए दिया गया होता है, तो उसमें आप अपना देख सकते हो, अकॉर्डिंगली यू कैन इंटरेक्ट विद देम आल्सो। अच्छा, ओके। और मैम मैंने अभी रिसेंटली खत्म किया कोर्स, तो मतलब मेरा एग्जाम मतलब कभी होगा, कभी रजिस्टर कर सकती हूँ मैं? ओके, एग्जाम के लिए अभी मैंने दिखाया ना एग्जाम कैलेंडर, वो एवरी सैटरडे संडे को है, इवन और भी वीकडेज में भी कभी कभी होता है। तो यू कैन जस्ट गो एंड सेलेक्ट एंड रजिस्टर ऑन YCV वेबसाइट। हाँ, माधुरी जी पूछिए, यू हैव सम क्वेश्चन? या गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। एक्चुअली जस्ट ऐसे ही पूछना था कि MCQ में किस तरह से क्वेश्चंस या फिर इसके लिए तैयारी करनी है तो ऐसा कोई क्वेश्चन पेपर रहता है या प्रिपरेशन रहती है, तो उसके लिए कैसे हम लोग बार बार प्रिपेयर हो जाए, क्योंकि वाइवा प्रैक्टिकल काफी हद तक हम लोग उसमें निकल जाते हैं, पर MCQ में अगर हम लोग रह गए तो या फिर कम मार्क्स हो जाते हैं तो फिर हमको वापस देना पड़ता है। तो इस तरह से इसीलिए मुझे पूछना था कि MCQ कैसे परफेक्ट करें, बार बार प्रैक्टिस के लिए कौन सा? ऑल अबाउट
ऑन योर सिलेबस डिपेंड करता है। आप सिलेबस जो आपका है उसमें पूरा आप जितना भी है, एक भी आपने टॉपिक नहीं छोड़ना है, टोटली जितना है उतना कर लीजिए तो अच्छा रहेगा आपके लिए। ओके, विभूति जी, यू वांट टू आस्क समथिंग? यस सर। हाँ, गुड इवनिंग सर। गुड मैम, इवनिंग। एक्चुअली मेरा जो प्रश्न है वो, हम लोग जो एग्जाम दे रहे हैं वो एक दिन में हो रहा है, प्रैक्टिकल और थ्योरी? हाँ, नहीं, अभी जस्ट हमने डिस्कस किया, एक दिन में भी हो सकता है और जनरली 2 दिन में होता है, एक दिन थ्योरी एक दिन प्रैक्टिकल। अच्छा ओके, सर, एक और। हाँ, टाइम थ्योरी आगे थ्योरी देना पड़ता है ना सर? यस यस। एक दिन का मतलब कितना टाइम मिलेगा? एक दिन का टाइम मिलेगा बीच में? नहीं, एक दिन थ्योरी रहेगा और नेक्स्ट डे प्रैक्टिकल रहेगा मोस्टली, जैसे सैटरडे को हो गया थ्योरी, संडे को प्रैक्टिकल। अच्छा सर, मेरा और एक प्रश्न है, जो पार्टिसिपेट है वो दूसरा साइट से भी दे रहे हैं, मतलब मोबाइल से भी दे रहे हैं, वो बोल रहे हैं मोबाइल से भी थ्योरी दे पाएंगे, ऐसे बोल। ओके ओके, लेट मी आस्क। नो सर, नहीं, मोबाइल से उन्होंने इसलिए नहीं कहा है कि मोबाइल में एक्चुअली हम कॉपी कर सकते हैं, वैसे है, लेकिन लैपटॉप में कैसे वो टेलीग्राम या कुछ ऐसा उनका एक ऐप होता है, वो डाउनलोड करने बोलते हैं, उसमें टोटली कंट्रोल वो अपना करते हैं उसके ऊपर। इसके लिए मोबाइल पे तो उन्होंने नहीं कहा था, लैपटॉप इज कंपल्सरी। हाँ, मना किया थ्योरी के लिए, थ्योरी के लिए। प्रैक्टिकल के लिए आप मोबाइल कर यूज कर सकते हैं, बट थ्योरी के लिए लैपटॉप इज कंपल्सरी। राइट। और सर, मैंने बोला था बंगाली में दे पाएंगे क्या? ओके, तो हिंदी इंग्लिश में क्या होता है ना, जितने भी एग्जाम्स जो आप देख रहे थे डेट, सारे एग्जाम्स हिंदी इंग्लिश में अवेलेबल हैं। अदर लैंग्वेजेस में डिपेंड करता है, हो सकता है मंथ में एक बार हो, 2 मंथ में एक बार हो, या 3 मंथ में एक बार हो। तो ओके, नीतू जी कुछ पूछना चाहती हैं? मैं ये पूछना चाहती हूँ, पहले तो गुड इवनिंग तक। गुड इवनिंग। कि ये लेवल 3 में ना फील्ड एक्सपीरियंस का भी वेटेज है ना? राइट। तो उसको हम कैसे सबमिट करेंगे? ओके, सभी लेवल में है, वही अभी हमने इनसे पूछा भी था, दोनों से, वेद महाजन जी से भी, रतिका जी से। तो जनरली वो तो एक तो पूछते हैं डायरेक्टली कि आपका एक्सपीरियंस क्या है ना, दैट इज इन प्रैक्टिकल काइंड ऑफ वाइवा दे विल आस्क। अनदर इज सबमिटिंग ए पीडीएफ जहाँ पे आपका प्रोफाइल होता है, ठीक है। तो वही एक्चुअली देखिए डिपेंड करता है एग्जामिनर पे। जैसे वेद महाजन जी से उन्होंने कुछ भी नहीं पूछा, लाइक न पीडीएफ मांगा, थोड़ा सा उनको फिर वाइवा के जैसा पूछ लिया कि आपका क्या एक्सपीरियंस है कि नहीं, ऐसा है या ना वेद जी? आपसे उन्होंने बस प्रैक्टिकली पूछा, कुछ सबमिट करने के लिए नहीं बोला। मेरे को पूछे? हाँ, क्या आप ये जो एक्सपीरियंस होता है ना, फील्ड एक्सपीरियंस 10 मार्क्स का होता है, हाँ, है ना। तो उसमें 2 तरीके से वो पूछते हैं, एक तो प्रोफाइल सबमिट करने बोलते हैं, और दूसरा है कि वो वाइवा में पूछ लेते हैं। मेरे को कुछ भी नहीं हुआ, जैसे लतिका जी कह रही है कि मेरे को पहले उन्होंने फोन किया कि आप सबमिट कर दो, मेरे को वैसा भी कुछ नहीं, उन्होंने फोन नहीं किया, मैंने फोन करके पूछा था कि ऐसे वो रह गया मेरा, तो मैं क्या करूँ, उसको भेज देते थे, कोई बात नहीं, उसकी जरूरत नहीं। ओके, तो फिर भी हम लोग को रेडी रहना चाहिए। एक प्रोफाइल बनाइए अपना, जितना भी आपने पहले योगा में कुछ किया है, वर्कशॉप किया हो या फिर सिखाया हो, उसका एक प्रोफाइल बनाइए। एंड देन ऑल्सो बी रेडी, जो भी आप लिख रहे हैं उसी से वो क्वेश्चन जनरली पूछ सकते हैं, या फिर डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि हैव यू टॉट समवन, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है। तो ये 2 चीजें कर सकते हैं। ओके सर, थैंक यू। एक्चुअली मेरे को एक गलती लगी थी ना उस समय, जब उन्होंने पूछा ना कि हैव यू टॉट समवेयर, मैंने कहा नहीं, तो मेरे को वहां पे बताना चाहिए था कि मैंने ऐसे फॉर्मली नहीं टीच किया है, लेकिन मैं जगह जगह बीच में कभी कैंप लगाया, जैसे या मैं अपना बाल संस्कार केंद्र अपने घर में स्टार्ट किया हुआ था बच्चों को, वो चीजें तो एक्सपीरियंस थी ना मेरा, राइट। तो मैंने बनाई हुई थी पीडीएफ। यस यस, दैट इज इम्पोर्टेंट। मैं भूल गई, कुछ कंफ्यूजन सा हो गया था मेरे को। हाँ, तो अपना रेडी रखना है, अगर वो मांगते हैं तो देना है, नहीं मांगते तो नहीं देना, सिंपल। उसके लिए भी एक्चुअली उसके लिए भी तो फील्ड एक्सपीरियंस के लिए भी तो मार्क्स ऑलरेडी है, तो हमें उसका फायदा मिलना, हाँ, दैट इज द बेनिफिट ना सर, कि हम अगर भेज देते हैं पीडीएफ तो हमारा वो 10 मार्क्स भी इसमें ऐड हो जाएगा। हाँ, ये उनका ही काम है एक्चुअली, दे शुड आस्क। उन्होंने पहले ही ग्रुप में डाल दिया था, लेकिन जब भी रजिस्ट्रेशन किया था ना मैंने सर, तभी मैंने अपलोड कर दिया था वो YCB के इस पे। उनका कहना क्या होता है,
हाँ श्रुति मैम, उनका कहना क्या होता है कि आप पहले अगर आप पीडीएफ अपलोड कर दोगे ना, तो बहुत सारे पीडीएफ आते हैं, तो उससे वो लोग का रह जाता है देखना, कभी कभी ऐसा भी होता है, मिस हो जाता है। दैट इज वाई दे सेड कि आप जब एग्जाम आपका होता है प्रैक्टिकल, उसके 2 घंटे पहले या 1 घंटे पहले आप उसको अपलोड कर दीजिए, ताकि वो फ्रेशर्स रहेगा तो आप तुरंत उसको रिप्लाई कर सकते हैं। उन्होंने ईमेल आईडी देते हैं, वो लोग ईमेल आईडी अपना देते हैं। ओके, उनका मुझे ईमेल तो आईडी नहीं उन्होंने बोला भेजा गया था था लेवल मुझे। 2 के लिए, मुझे कुछ भी ऐसे नहीं बोला गया था प्रैक्टिकल के पहले। नहीं, तो मुझे उन्होंने तो मैंने बताया बोला था। ना, मेरा टाइमिंग का भी ऐसे हो गया था इशू, पता नहीं क्यों। लेकिन मैंने खाली रजिस्ट्रेशन के टाइम पे हमको बोला गया था कि यू एंड यू नो योर इवन योर फाइल शुड बी वेरी अट्रैक्टिव सो दैट यू नो पीपल वो देखते उनको थोड़ा अच्छा भी लगे। हाँ हाँ, तो मैंने मैंने वो भी सब उसी तरह करके से काम फाइल, करके हाँ उसके ऊपर अपलोड तभी कर दिया था। ओके। लेकिन एग्जाम के पहले मुझे पूछा नहीं, फिर पता नहीं अब मुझे मार्क्स मिले भी होंगे या नहीं उसके। नहीं, मिलते तो हैं, क्योंकि वो लोग रिप्लाई तो उसके लिए देते ही है। अच्छा, रिप्लाई किया था उन्होंने ईमेल का? नहीं, ईमेल का रिप्लाई नहीं किया, बट मिल गया था इतना, बस उन्होंने किया था रिप्लाई। ओके, और एग्जाम के टाइम पे उन्होंने कुछ जो आपका एक्सपीरियंस आपका था प्रोफाइल, उससे कुछ क्वेश्चन पूछा कि आपने ये लिखा है? ओके, नहीं सर, कुछ भी नहीं। ऑल राइट, एनी अदर क्वेश्चन? सर प्रोफाइल में क्या क्या डालना पड़ता है? उसमें दूसरा सर्टिफिकेट भी डालना पड़ता है, एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट है? बिल्कुल, लाइक प्रोफाइल जैसे बनता है ना, जिसमें आप सर्टिफिकेट रखेंगे और इवन उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर सकते हैं अगर, या फिर सपोज जिसके पास फोटो है, सर्टिफिकेट है ही नहीं, जिन्होंने वर्कशॉप करवाया या फिर किया और उनका कोई प्रूफ नहीं है, बट स्टिल अगर फोटो है तो फोटो भी लगा के उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं व्हाट वाज द इवेंट। ऐसा भी तो सर हो सकता है, जो शिविर मैंने लिया है उसका भी फोटो स्क्रीनशॉट में उसमें डाल सकता हूँ? हाँ, स्क्रीन अभी के लिए सब कुछ चल रहा है। ऑनलाइन के केस में जो भी आपका प्रूफ है, जिसे आप प्रूफ दिखा सकते हैं कि हाँ हमने ये किया है, दैट इज वैलिड। मतलब आगे का जो फोटो है, मतलब फील्ड का जो फोटो है वो भी मैं डाल सकता हूँ, और अभी जो चल रहा है वो भी मैं डाल सकता हूँ। राइट राइट, हाँ, पूरा जो भी आपने एक्सपीरियंस किया है। हाँ, और सर वॉलंटियर कोर्स का भी डाल सकते हो ना इसमें, वाईसीबी का? यस यस, बिल्कुल। मैंने ना आपको भेज दिया, जैसे मैंने बनाया था ना पीडीएफ। ओके, थैंक यू, ये बहुत अच्छा, ये हेल्पफुल होगा काफी। सर मेरा और एक क्वेश्चन है, ये जो पीडीएफ है वो किसी टाइम में कौन से साइट में ये भेजना होगा, सेंड करना होगा? जैसे लतिका जी ने बताया ना कि एक ईमेल वो दे देते हैं, ईमेल आईडी देते हैं कि इस पे आप सेंड कर दीजिए, तो उसमें उसी तरह से सेंड करना है। हाँ सर, एग्जाम जब आप रजिस्टर करते हैं तो वो लोग भी ईमेल आईडी देते हैं। उन्होंने मुझे 3 ईमेल आईडीज दिए थे, उसमें से किसी एक पे आप सेंड कर दीजिए, उन्होंने ऐसा कहा। आपको उस टाइम पे मिल जाएगा। और अगर तीनों पे ही सेंड कर दिया तो? तीनों पे एज ही विश, बट मैंने एक ही पे सेंड किया था, वो सफिशिएंट है। मिल गया तो नहीं जाता ईमेल, क्योंकि जीमेल की भी कुछ लिमिट रहती है ना, मे बी बैड लक हो, नहीं गया तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। एज अ विश मैंने तो नहीं किया था, मैंने सिर्फ एक ही ईमेल आईडी पे सेंड किया था। अगर ऐसा मैंने उनको रिप्लाई किया था कि आपको मिला कि नहीं, तो उन्होंने बस हाँ करके रिप्लाई दिया था। हाँ, तो आपको श्योर होना चाहिए कि आपको मिल गया कि नहीं मिल गया। और ये सर्टिफिकेट जो बोल रहे हैं, ये मतलब स्पेसिफिकली योगा का ही होना चाहिए? मतलब कैसा पार्टिसिपेशन का सर्टिफिकेट ऐसा तो कुछ है नहीं? नहीं, जैसे आपने कहीं वर्कशॉप किया है या किसी को ट्रेन किया है या कोई क्लासेस आप सिखाते हो, वो फील्ड एक्सपीरियंस है आपका। हम और आप किस तरह से, मतलब आप क्या बोलना चाहते हैं, वो डाल सकते हैं? हाँ, हमारा तो फ्री लेती हैं, फ्री का ट्रेनिंग सब कुछ देती हैं। तो बट इसमें सर्टिफिकेट कुछ नहीं है, फोटोज वी कैन प्रोवाइड। फोटोज वी कैन प्रोवाइड, यस, which you have at present that time now, you can upload, okay, as a field experience. मैम इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही क्वेश्चन आता है ना? नहीं, उसमें 2 ऑप्शंस होते हैं ना सर, इंग्लिश और हिंदी। आपको जो ऑप्शन चूज करना है लैंग्वेज के लिए, आप वो ऑप्शन यूज कर सकते हैं। नहीं, पेपर तो दोनों लैंग्वेज में होता है। हाँ, एग्जाम देते समय दोनों लैंग्वेज में होता है। साइड में स्क्रीन पे दिया जाता है। अच्छा, स्क्रीन में रहता है कि आप कौन सा लैंग्वेज आप चूज करना चाहते हो, दैट इज योर चॉइस। टाइम कितना मिलता है मैम इसमें? 2 आवर्स? यस सर, 2 आवर्स, 60 क्वेश्चंस होते हैं, 120 मिनट्स मिलते हैं, और इट इज वेरी इजी टू राइट।
बहुत जल्दी आपका पेपर खत्म हो जाता है। आप एक बार फिर से आप रिवाइज कर सकते हैं, आपने क्या रॉन्ग किया है, राइट किया है, करेक्ट फिर से कर सकते हैं आप। चिन्मय जी, आस्क योर क्वेश्चन। सर रॉन्ग आंसर पे नंबर कट होता है क्या? नो नो, रॉन्ग आंसर पे नंबर कट नहीं होता है। नेगेटिव मार्किंग। नो नेगेटिव मार्किंग। क्या मैम एक और क्वेश्चन था, जैसे हम लोग फिट भारत के चैलेंजेस रहते हैं तो उसमें हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं, उनका भी फिटनेस के ऊपर ही रहता है, तो उसमें भी हमें सर्टिफिकेट मिलते हैं। हाँ, और एक जगह पे फिट भारत की भेज नारी सकते हैं आप, भेज सकते हैं। हाँ वो भेज सकते हैं ना? भेज सकते हैं, भेज सकते हैं। मतलब वो योगा रिलेटेड नहीं है, जैसे कि बर्पीज चैलेंज होता है, स्क्वाट्स चैलेंज है। राइट, देखिए हम योगा में भी नॉर्मली करवाते हैं ये सब, पता है आपको ना। हाँ, फिटनेस से लेके आप तो बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा भी करवाते हो। अगर आप वो भेज दोगे तो आपके लिए अच्छा है ना, कि आपको अगर मार्क्स उसमें अगर आपका एक्सटेंड हो रहा है, अच्छी बात है। ओके, थैंक यू। चिन्मय जी, हेलो। हाँ बोलिए। हेलो, हाँ सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, बोलिए। हाँ क्या सर, मेरा क्वेश्चन है? एक्चुअली क्वेश्चन ये है कि जैसे हम लोग ऑनलाइन एग्जाम दे रहे हैं, तो इसका जो ओएमआर सीट जो है ये क्या ऑनलाइन ही रहेगा, और राइट में क्या जैसे क्वेश्चन एक तरफ आएगा और एक तरफ आप मारते जाएंगे टिक या जो भी है, वैसा रहता है क्या? नहीं, क्वेश्चन है और उसी के सामने ऑप्शन रहेगा और उसको बस क्लिक करना है करेक्ट ऑप्शन में। हेलो। हाँ, जैसे क्वेश्चंस होते हैं ना ऑनलाइन में, राइट, ऑनलाइन में क्वेश्चंस होंगे, उसी के नीचे आपके पास ऑप्शन होंगे, ऑप्शन में बस क्लिक करना है। अच्छा, एवरी क्वेश्चन नीचे रहेगा ऑप्शन, और ऑप्शन में मारेंगे। इसको क्या डायरेक्ट लैपटॉप में या डेस्कटॉप में भी कनेक्ट करके कर सकते हैं? कर सकते हैं, लैपटॉप या डेस्कटॉप, फोन नहीं होना चाहिए। अच्छा, डेस्कटॉप अगर रहेगा तो उसमें फिर आपको वेबकैम रखना पड़ेगा। हाँ, वेबकैम रहेगा। राइट, ठीक है सर, थैंक यू। ऑलराइट, तो लास्ट क्वेश्चन कि एग्जाम देने के बाद आपको कितने दिन के बाद रिजल्ट आया, उसके बाद कितने दिन के बाद सॉफ्ट कॉपी आया, और हार्ड कॉपी आया कि नहीं, या फिर कैसे आएगा, उन्होंने क्या बताया आपको? सर एग्जाम के बाद मेरा लगभग 1 मंथ हो गया तो भी मुझे आया नहीं था, तो उनको मैंने कॉल बैक किया तो सर्वर डाउन है करके ही मेन प्रॉब्लम था उनका। हाँ। बाद में मेरा सॉफ्ट कॉपी तो आ गया, हार्ड कॉपी अभी तक नहीं आया है। राइट, बट रिजल्ट तो और पहले आता है ना डैशबोर्ड पे, वाईसीवी के डैशबोर्ड रिजल्ट पे तो हाँ, तुरंत 2 दिन बाद तो मुझे रिजल्ट मालूम पड़ गया था। 2 दिन के बाद आया था? ओके ओके, 2 दिन के बाद मतलब मार्क्स पता चल जाता है कि हम पास हुए या फेल हुए? नहीं, जस्ट रिजल्ट पता चल रहा है आपका कि मार्क्स आपको कितने मिले वो। हाँ, तो अगर वो डैशबोर्ड पे पहले ही आ गया था। हाँ, तो 70% से एबव है तो हमें पता चल जाएगा ना कि हम पास कर चुके हैं। क्या? ओके, वेद जी आपको कितना टाइम लगा, कितने टाइम में दिया उन्होंने? मेरे ख्याल में गया था, हफ्ते के अंदर ही आ गया था। हाँ, yes, पता चल within गया a था week. कि हाँ, लेकिन वो जो सर्टिफिकेट वगैरह वो तो कोई हार्ड कॉपीटा मासे ভিতরে আসুজি, बट सॉफ्ट कॉपीटा पड़े आसी 2-3 दिन ভিতরে না রেজাল্ট বাড়ি দিন পটকি মানে পাস কি ফেল জানি দেবে। लेवल 2 लगी फाइनल करिवा पूरा डायरेक्ट लेवल 2 लगी माने पूरा जान लगे की पढ़िबार अछि। एबे टाइम अछि मासे 2 मास भीतर लागी गिरी सीधा 2 मास पर एग्जाम। हाँ, तो मतलब विद इन अ वीक आ जाता है ना मार्क्स, आपका विद इन अ वीक आ जाएगा। और उसके बाद राइट। तो ये हार्ड कॉपी के लिए हमको क्या करना होगा? अभी तक नहीं आया मेरा। ओके, आपको डायरेक्टली उनसे ही कांटेक्ट करना पड़ेगा। आपका भी IYA था ना? हाँ, आप एक बार कांटेक्ट कीजिए कि लाइक कब तक सेंड करेंगे हार्ड कॉपी, या फिर कोरोना की वजह से प्रॉब्लम है। फिजिकल कॉपी आ जाएगा। नहीं सर, मैंने जब उनको कांटेक्ट किया था तो उन्हें कहा था यही हार्ड कॉपी भी है आपकी, यही एक है, कोई भी एक्स्ट्रा आपको कुछ और नहीं है। अच्छा, वो अभी नहीं सेंड कर रहे हैं क्या? बस एक्चुअली सॉफ्ट कॉपी जो है वो कम्प्लीटली वैलिड है ना, क्योंकि उसके अंदर QR कोड होता है, उसके अंदर एक यूनिक ID होता है, तो कोई कॉपी कर नहीं सकता है ना, कोई फेक नहीं बना सकता सर्टिफिकेट, इसीलिए वो कम्प्लीटली वैलिड है। डिजिटल सर्टिफिकेट भी वैलिड है, इसलिए शायद वो अभी सेंड नहीं कर रहे हैं, मे बी पहले तो करते थे। अच्छा।
सो अभी जो लेवल 3 के लिए जैसे मैंने पहले पूछा था, अभी हमको प्रोसीजर क्या होगा? जैसे 15 डेज पहले रजिस्ट्रेशन करना है, तो ओनली रजिस्ट्रेशन फॉर एग्जाम करना है ना? रजिस्ट्रेशन फॉर वाईसीबी तो नहीं करना है ना हमको? नहीं करना है, लाइव अभी लेवल 3 दे रहे हैं आप। हाँ, लेवल 3 में आपने एक बार भी रजिस्टर नहीं किया, एक लेवल में किया है। हाँ, एक लेवल में एक बार रजिस्टर करना पड़ता है वाईसीबी के वेबसाइट पे। हाँ, और लाइफ टाइम के लिए होता है, हमेशा के लिए रह गया आपका। हाँ, तो मतलब एक लेवल में एक बार करना पड़ता है। हाँ, दैट मींस लेवल 3 में आपने अभी तक नहीं किया, एक बार लेवल 3 में करना पड़ेगा। एंड देन यू गिव एग्जाम। तो अगेन वो रजिस्ट्रेशन फीस एंड रजिस्ट्रेशन पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा। राइट। हाँ, ओके, दिस इज योर प्रोफाइल। दिस इज हाउ आई स्टार्टेड विद एडमिट कार्ड नंबर एंड किसके लिए अपीयर कर रही हूँ मैं। देन दिस इज द इंडेक्स काइंड ऑफ कंटेंट्स, जो भी है, मैंने जो भी एक्सपीरियंस है या व्हाटएवर जिस चीज के लिए मैंने अभी ये सारे वर्कशॉप्स लिए थे इतने लोगों के लिए, तो वो मैंने इंक्लूड कर दिया था। और ये मैंने सर्टिफिकेशंस का अलग रखा था, वर्क एक्सपीरियंस अलग रखा, फील्ड एक्सपीरियंस अलग रखा। एंड देन अकॉर्डिंगली जो भी उनको चाहिए, जैसे अगर ये इंटरनेशनल डे, मतलब मेरे अपनी क्लासेस है, तो मेरे क्लासेस के थ्रू जैसे मेरे सेलिब्रेशंस हुआ करते थे, तो वो डायरेक्टली उसके ऊपर क्लिक होके चला जाता था। ऑफकोर्स हम लोग अपने हिसाब से बना सकते हैं कि ये सारे सेलिब्रेशन के फोटोग्राफ्स है, कितने साल मैंने लिए हैं 2015 से। तो दिस इज ऑल द सेलिब्रेशन विद माय स्टूडेंट्स। नाइस। इसके पहले आपके पास कुछ सर्टिफिकेट था, यू आर सर्टिफाइड टीचर एंड देन यू स्टार्टेड दिस? नहीं, एक्चुअली मैंने मेरी मम्मी से सीखा हुआ है। तो मैं बचपन से करती आ रही हूँ योगा खाली। एंड देन तभी जब मैं करती थी तभी तो शायद मेरे ख्याल से कोई एग्जाम्स तो नहीं थे। अभी ये जैसे ये रिहेबिलिटेशन सेंटर में मैंने सिखाया है, दीज वर ऑल डी एडिक्शन सेंटर है, तो उनको जाके मैं वर्कशॉप्स लिया करती थी। वेरी नाइस। अभी ये प्रोजेक्ट था 10,000 बच्चों को अप्रोच करना, तो वो सारे स्कूलों में जाके मैंने उधर ऐसे, तो वो इस हिसाब से मैंने ऐसे, जैसे मेरे अभी ये मेरे क्लासेस के हैं जिनके अपने कुछ एक्सपीरियंसेस उन्होंने शेयर किए हैं। तो वो एक्सपीरियंसेस मैंने जैसे मेरे फेसबुक पेज पे उन्होंने डाले थे, तो वो एक्सपीरियंसेस मैंने डाल दिया। अभी जैसे जो स्पेशल लगे मुझे, कि ये पर्सन शी इज पार्किंसंस पेशेंट, तो उनको कैसे हील हुआ, उनको हील इन द सेंस उनको कितना फायदा हुआ। फ्रोजन शोल्डर है, दिस वाज फ्रोजन शोल्डर, तो उनके खाली मैंने और हाईलाइट करके, बिकॉज दे डोंट हैव टाइम टू रीड ऑल द थिंग दैट यू आर सेंडिंग। ओके, तो उन्होंने रीड किया, ऐसा आपको कुछ पता चला कि उन्होंने रीड किया? मैंने अपनी तरफ से कोशिश की थी। अभी ये खाली हाईलाइटेड करके रखे थे, अगर वो गो थ्रू भी करते तो खाली हाईलाइटेड चीजें देख के आगे जाए। This was for 2 you did? Pardon? This was for level 2 you did? Yeah, I did for level 2. It is okay, like जितना है हाँ, आप जितना है उतना आपका जो भी सर्टिफिकेशंस है जो भी है आप, मैंने क्यों बताया कि हम ये इस फॉर्मेट में, अभी ये मैं किसी हॉस्पिटल से भी जुड़ी हुई हूँ, तो उनकी तरह उनके यहाँ जाके मैं लेके आई थी एक्सपीरियंस। मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट इज कि देखिए इनके पास सर्टिफिकेट नहीं था। नहीं, सर्टिफिकेट है ना, आई हैव, हाँ सर्टिफिकेट इन द सेंस, दीस आर द सर्टिफिकेट्स टीचिंग वाला, लेकिन सीखने वाला YTTC वगैरह नहीं हुआ था। मैंने खाली 1-2 एग्जाम दिए थे, वो बस अभी जैसे मेरे ये एक्सपीरियंस है। ये एक मैंने कोर्स किया था ऑनलाइन, जैसे लॉकडाउन शुरू हुआ तब मैंने थोड़ा एक कोर्स किया था, बस ऐसे कुछ मेजर YTTC वगैरह नहीं हुआ है मेरा। लेकिन आई हैव बीन कंडक्टिंग क्लासेस सिंस मोर देन 20 years नाउ। या अराउंड 20 years, 15 to 20 years से क्लासेस ले रही हूँ मैं अभी। इम्पोर्टेंट इज इतना रॉ भी हम कर सकते हैं, लाइक फोटो, इवन स्क्रीनशॉट, हाँ, एवरीथिंग कैन बी अटैच्ड। हमको एक्चुअली मुझे लगता है कि खुद काफी सारे साल से हम लोग सिखाते हैं, लेकिन हम लोग को खुद को बैठ के मुझे बहुत सोचना पड़ा था, फिर भी मेरी 1-2 चीजें हाथ से निकल गई थी, मैं डालना ही भूल गई थी। हाँ, पहले से मेंटेन नहीं करते हैं ना, हमारा क्या पहले से मेंटेन नहीं करते हैं। सर, आपका एग्जाम, आपका क्लास अटेंड करने के बाद पता चला कि ये सब भी करना होता है। हाँ बिल्कुल। और मैम ने और ये हाँ इट्स ओके। नाइस श्रुति जी, वेरी गुड, थैंक यू। ठीक है, लास्ट मैसेज लतिका जी एंड वेद जी टू स्टूडेंट्स हु आर देयर, जो अभी प्रिपेयर कर रहे हैं, एंड वी कैन क्लोज द सेशन देन। मैसेज यही कि आप स्टार्ट किया, अब आपने तो ये सोच के ही करना कि हाँ
क्लियर हो जाना है आपका। सिर्फ एक कंसिस्टेंसी चाहिए, एक वो चाहिए कि हाँ लगातार करते जो ये करवा रहे हैं क्लास में उसको रिवाइज कर लो एक बार। वो जो आसन मुद्रा जो भी आपको प्रैक्टिकल करवाते हैं वो भी उसको भी रोज रूटीन में करते रहो, उसको प्रैक्टिस करते रहो। और एक आधी बुक जो है कोई एक ले लो। मैंने तो ये ली थी, ये इनके बाकी तो नोट्स इनके ही थे, उनको भी मैंने ये करवा लिया था ना, जैसे इसकी हार्ड कॉपी निकाल ली हुई थी। इनका जो ये भेजते थे उनको मैंने हार्ड कॉपी निकाल। बाकी एक ये बुक रखी हुई थी मैंने, आयुष वालों की है, ये सर्टिफिकेशन ऑफ योगा प्रोफेशनल गाइड बुक। तो ये लेवल 2 तक ही है वैसे, पर 3 भी कवर हो गया था इसमें, जो इन्होंने करवाया था वो उसमें हो गया था सारा 3 मेरा। तो बाकी हाँ एक था कि जो करवाते हैं क्लास में उसको खुद लिखो, वो बड़ा फायदा देता है आपको, क्योंकि आपको ना वो चीज याद आ जाती है जो क्लास में की होती है ना, तो वो लिखा होता है जो वो लास्ट में ना वो बड़ा फायदा करती है। आप जैसे मैंने एक डायरी बनाई हुई थी अपनी, इसमें मैं सब कुछ लिख के रखती थी जो भी क्लास में करवाते थे, और फिर उसको हाईलाइट भी कर देती थी लास्ट में। फिर उसको जो हाईलाइटेड है उसको देखा, फिर इजी हो जाता है सब कुछ। हैंड रिटन जो लेवल 2 उससे बड़ा फायदा होता है। लेवल 2 के लिए तो आपका सिलेबस जो क्लास ने किया है वो सफिशिएंट है, उतना ही पढ़ लेंगे तो। और लेवल 3 के लिए तो डिटेल थोड़ा चाहिए ही है, वो तो बुक्स के थ्रू ही हो जाएगा। वो तो रीडिंग इज मस्ट इम्पोर्टेंट। ऑल राइट, सो आई थिंक वी आर डन विद दिस। बहुत ही अच्छा रहा, बहुत कुछ सीखा हमारे स्टूडेंट्स ने। और भी मैं ट्राई करूंगा कि इस तरह से करता रहूं बीच बीच में, जितने भी स्टूडेंट हैं, स्पेशली एग्जाम जिनका क्लोज आने लगता है उनको ये सब जरूरी होता है, नहीं तो उनको समझ में नहीं आता कि अंधेरे में जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं ऐसा। हाँ पर सर अगर आप ऐसे कंडक्ट करने लगोगे ना तो L1 वाले L2 में हो जाएंगे और L2 वाले L3 में जाएंगे। बिल्कुल, और ऐसे इतना हड़बड़ी भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, वी कैन स्टार्ट विद लेवल 2 और आराम से लेवल 3 में जा सकते हैं, क्योंकि लेवल 2 के बाद सारी फैसिलिटी है, यू कैन कंडक्ट ऑल काइंड ऑफ योगा क्लासेस, है ना। हमारे एक और सर जुड़े हुए हैं, वो अभी क्लास नहीं ले रहे हैं, कोविड की वजह से बहुत बिजी हैं, तो थोड़ा सा अगर कुछ सर कुछ बोलना चाहेंगे तो प्लीज से समथिंग। संजीव सिंघल जी। सभी लोग जो महाबोधि से जुड़े हुए हैं या इस एग्जाम में अपीयर होने चाहते हैं, सभी को मैं एक चीज बता देता हूँ। भीम जी ने भी आरंभ से ही एक बात बताई है कि जैसे अभी यहाँ पर वेद जी ने भी बताया, लतिका जी ने भी बताया कि ये जो एग्जाम है ये उन लोगों के लिए है। मैं अगर ये बताऊंगा कि क्या कोई व्यक्ति पानी बना सकता है, पानी बनाते नहीं है, पानी को प्यूरिफाई किया जा सकता है। हीरा बनाया नहीं जा सकता, हीरा तो पहले ही बना हुआ होता है, केवल उसे निखारा जाता है, उसे चमकाया जाता है। इसी प्रकार से यहाँ पर जो योग अभ्यर्थी हैं, पहले से ही जो योग से जुड़े हुए हैं, काफी लोगों को मैं देख रहा था कि बहुत ही अच्छा लग रहा था। पहले मुझे लग रहा था कि मैं कुछ देर के लिए इससे जुड़ूंगा, लेकिन सभी के जो प्रश्न चल रहे थे मैं चुपचाप सुन रहा था। सबसे पहले तो मैं आपको एक कॉन्फिडेंस देना चाहता हूँ कि जो भी लोग यहाँ महाबोधि से जुड़े और उन्होंने केवल क्लास अटेंड कर ली, तो मैं आज आपको लिखकर ये बोल सकता हूँ कि आप सभी पास हो जाए। देखिए अभी जैसे श्रुति जी ने अपना एक पोर्टफोलियो दिया, मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि यहाँ पर बैठे हुए काफी लोगों के लिए तो वो बेनिफिशियरी होगा, लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जो उसको देख करके थोड़ा सा निराश ना हो जाए, क्योंकि काफी लोगों को ये महसूस होगा कि हमारे पास तो इतना अच्छा पोर्टफोलियो नहीं है, तो इसका मतलब शायद हम नहीं कर पाएंगे। लेकिन मैं आपको ये बता देता हूँ, देखिए कभी भी एक्चुअली मैं एक अध्यापक हूँ, जिन भी बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ मैं उन्हें बताता हूँ कि आजकल शिक्षा लेने से ज्यादा जरूरी है उसकी प्लानिंग करना। अगर आपका नियोजन सही है तो आप किसी भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। आप IAS की तैयारी करते हैं, तो जो लोग तैयारी करते हैं, काफी मेरे फ्रेंड्स हैं,
काफी लोग ऐसे हैं जो 24 घंटे पढ़ते हैं, और काफी लोग ऐसे हैं जो पढ़ते कम है लेकिन उसकी सटीक प्लानिंग कर पाते हैं। तो आप लोग ध्यान रखें इसमें, अगर इस एग्जाम को आप क्रैक करना चाहते हैं तो आप महाबोधि की क्लासेस कर रहे हैं, एक चीज ये हो गई। इसी तरीके से जब हम अपने एजुकेशनल एग्जाम्स देते हैं तो हम पीछे के जो क्वेश्चंस हैं उनको देख लेते हैं। तो इसी प्रकार से आज का ये जो एक वर्कशॉप भीम जी ने अरेंज किया, उसका जो एक लक्ष्य था वो भी यही था कि हमारे मन में जो छोटे छोटे से प्रश्न होते हैं, यहाँ पर ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि हम प्राइमरी क्लासेज में पढ़ने वाले बच्चे हैं, और उसी प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं और आने भी चाहिए। ये प्रश्न जितने अधिक आपके मन में आएंगे उतना ही अधिक आप उस सफलता के पास पहुंच पाएंगे। तो यहाँ पर एक बात, आप योग से जुड़े हुए आप अपने मन में बैठा लीजिए, क्योंकि काफी लोगों को ये कंफ्यूजन था कि हम तो कहीं सिखा नहीं रहे हैं। तो आप इस चीज से बिल्कुल भी निराश ना हो, आप नहीं सिखा रहे हैं, लेकिन आप अपने दिमाग में ये बैठा लें, जब भी वहां पर वाइवा होगा या एग्जाम होगा तो आप ये मान के चले कि आप योग से जुड़े हुए हैं। आप नहीं सिखा रहे हैं तो भी सिखा रहे हैं, आप सिखा रहे हैं, योग से जुड़े हुए हैं, योग का अभ्यास प्रतिदिन करते हैं और योग को पढ़ते हैं। क्योंकि ये जो ऑर्गेनाइजेशन संगठन बनाया गया है, इसका उद्देश्य भी ये है कि अधिकाधिक लोग जो साधारण तौर से पार्क्स में या बहुत सारे संगठनों में करा रहे थे योगा, तो उनको सर्टिफाई किया जाए, उनका उद्देश्य है। और उस उद्देश्य के लिए वहां पर जो टीम संगठित की गई है वो वहां पर आने वाले सभी अभ्यर्थियों की मदद करती है। इसलिए आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। जो भी एग्जाम होगा उस एग्जाम को आप बहुत ठंडे दिमाग से आप उसे स्टडी करें। आप ये मान करके चलें, केवल उसकी एक योजना बनानी है, उसको आराम से आपने पढ़ना है, रटना नहीं है, सीखने का प्रयास करें और आप देखेंगे कि वो एग्जाम बहुत ही सरलता से आप सफलता को प्राप्त कर पाएंगे। और इस प्रकार के आयोजन तो भीम जी करते ही रहते हैं और उनका मार्गदर्शन रहेगा। और जो महाबोधि की टीम है वो भी बहुत अच्छी है और मैंने देखा है उनकी क्लासेस को। जो प्रैक्टिकल एग्जाम्स हैं उसके लिए भी आपको चिंता नहीं करनी है, वहां पर वो लोग पूरी मदद करते हैं आपकी। और इस समय सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप काफी लोग कह रहे हैं कि हमें स्क्रीन का सामना करने में दिक्कत होती है, लेकिन आप ये सोचिए कि जब आप उनके मंच पर, उनके प्लेस पर जाकर के अगर आपको करना होगा, लेकिन यहाँ पर आपके लिए फैसिलिटी है कि आप अपने ही घर में, अपने घर के वातावरण में उस चीज को कर पा रहे हैं, तो ये तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो आप मैं तो चाहूंगा कि जल्दी से जल्दी इस अपॉर्चुनिटी को लें और इस एग्जाम से बिल्कुल ना घबराएं और सभी लोग इसके लिए रजिस्ट्रेशन करें। और मैं एश्योरेंस देता हूं कि सभी एग्जाम को क्लियर कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद भीम जी, आपने मुझे यहाँ पर मौका दिया और बहुत ही अच्छा लगा सभी से जुड़ने में। थैंक यू सर। थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छे से मोटिवेट किया और जैसे आपने बोला ना, काफी पॉजिटिव लगा सुन के। थैंक यू सो मच। यस सर, थैंक यू वेरी मच। थोड़ा काफी कॉन्फिडेंस मोटिवेट बढ़ हो गए। गया, कॉन्फिडेंस लेवल भी थोड़ा बढ़ गया सर। पास होते हैं आपसे सुनना पहले तो ही बहुत अच्छा लगा। यस यस, थैंक यू। एक चीज सर ने बोला वो मैं थोड़ा हाईलाइट कर दूंगा कि एक्चुअली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नीड्स मोर एंड मोर सर्टिफाइड योगा टीचर, और उनके पास एक्चुअली कमी है। जो उनके पास डेटा है वो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग आए जिनके पास ऑलरेडी नॉलेज है, गिव एग्जाम, बिकम ए सर्टिफाइड योगा टीचर। यू आर ऑलरेडी टीचिंग और प्रैक्टिसिंग, बिकम ए सर्टिफाइड नाउ। ठीक है। नहीं, और दूसरी बात सर ने ये बताई कि आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है कि आपका ऑनलाइन है, ऑफलाइन भी नहीं है, तो इसका फायदा हम उठा सकते हैं। मतलब बोलते हैं ना कि कंफर्टेबल आदमी कहाँ होता है, घर पे होता है। घर पे ही होता है। अब घर पे भी अनकंफर्टेबल होंगे तो फिर कैसे होगा। सही है। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच।